जय हिंद। मैं अनुश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक खास मौके पर यहाँ मौजूद हुए जहाँ इंजीनियर्स डे का 58 एडिशन बड़े ही धूमधाम और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। ये इवेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया अंडमान एंड निकोबार स्टेट सेंटर और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित किया गया है। आज के दिन इंजीनियर्स प्रोफेशंस के लिए एक सम्मान का दिन है, जिन्होंने अपनी मेहनत, सोच और नवाचार से देश को आगे बढ़ाया है। इंजीनियर्स सिर्फ मशीन या बिल्डिंग नहीं बनाते, बल्कि वो नए सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं जो समाज को आगे ले जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग सड़कों, पुलों और इमारतों का निर्माण करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर एनर्जी, मशीन्स और टूल्स का विकास करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिजली, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन को मजबूत बनाते हैं। कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नए ऐप्स, वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाकर दुनिया को कनेक्ट करते हैं। इंजीनियर्स का महत्व आज के युग में और भी बढ़ गया है। हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, सेफ टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में इंजीनियर्स का योगदान अमूल्य है। हर इंजीनियर्स अपनी स्किल को देश के विकास, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशंस की ओर ले जा रहा है। आज के इस खास अवसर पर हम इंजीनियर वी.बी. सिंह, प्रेसिडेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया के चीफ गेस्ट के तौर पर देखने को मिल रहे हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर सन्मुख कौर, प्रिंसिपल डीब्रेड, इस प्रोग्राम में की नोट स्पीकर के रूप में अपना मार्गदर्शन देने वाली है। आज का थीम रखा गया है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को बेहतरीन स्किल के साथ यूज़ कर भारत को अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना और नए अवसर क्रिएट करना। और आज यही सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें दिखाने वाले हैं। चलिए हम इस इवेंट को करीब से देखते हैं और जानते हैं कि इंजीनियर्स का हमारे जीवन में एक क्या महत्व है। The Andaman Nicobar State Center have been diligently working for behind getting a land in its own name, and finally in the month of June 2025 have selected a land of measured area 4,000 square feet on purchase basis at Bednabad. We are happy to share that the foundation stone for the building is laid by our beloved President IEI Engineer V.B. Singh in the presence of many distinguished council members and members of the Andaman and Nicobar State Committee on 11 September 2025. Future plan to set up own building at the purchase land at Bednabad, South Andaman, to set up students and technician chapters, improve membership, conduct more technical and workshop by experts from mainland. At last, I am thankful to all IEI corporate members and all the distinguished engineers present here who have spared their valuable time for joining us in celebrating the 58th Engineers Day 2025. Thank you. Thank you, Arunji, for giving a detailed report, annual report of the IEI activities at the Andaman Nicobar State Center. And now I invite our principal, debate, Professor Shanmukh Kaur Madam, for the keynote address. And before the address, I request our Arunji to read Madam's. Okay, revisit engineering from quantum science and technology. This I am going to discuss in the next few minutes. So basically, revisit engineering meaning we have to revise or rethink about engineering in a way that to improve the process efficiency or adapt to it. Next, please. So key properties of classical computers are deterministic. They are deterministic. Given an input, machine always provides some output. Step-by-step execution is another function. Operations follow a fixed logical sequence, and binary representation. All data is stored in the form of bits. So this is about classical computing. Next, please. Vehicle. Suppose the vehicle navigation system has to be in a way that it has to
create all the possible solution and navigation for going from one place to other place, considering the weather, considering the road conditions, considering the traffic conditions. So these all simultaneous combinations will create huge data that has to be operated. Similarly, suppose there is analysis for protein folding structures, and there are millions of protein folding structures, and we want to have the best one, because the proper protein folding structure will reduce the diseases. So we have an eminent engineer, engineer V.V. Singh sir. Actually, he is the president of IA India, and I would like to request sir to address the gathering. And before that, I like to invite our Arunji to read his profile. Engineer V.V. Singh sir, President IEI. Engineer V.V. Singh sir, a distinguished engineer and legal expert, was elected as President of the Institution of Engineers India for the session 2024-2025. He is evident from his service on the National Executive Committee of the Indian Water Resource Society since 2013. He has also served as a Secretary of the Elite Club of Lucknow, which comprises top administrators and executives of the region. His exemplary contribution to the engineering committee and earned him prestigious Abhyanta Ratna Award in 2014, conferred by the Uttar Pradesh State Electricity Board of Engineers Association in recognition of his long-standing service and leadership to the engineering fraternity. They stand as guardians of our seas and sentiments of our frontiers. From these very shores, where the tides of history once tested our spirit, there now rises a new horizon of opportunity and innovation. How fitting it is that we celebrate Engineers Day here in the land that beautifully bridges our heritage with our aspirations, a land that mirrors the very theme we embraced this year: deep tech and engineering excellence driving India's tech, regarding which our principal madam has spoken so well. The story of the institution in this island is also inspiring. It was established in the year 1989 as local center and blossoming into Andaman and Nicobar State Center in 2008. This center has been a vibrant hub of ideas, dialogues, and professional growth. It has never shied away from responsibility. Indeed, it has been at the forefront of organizing major programs at the IEI. Under the umbrella of IEI ANSC, under the guidance of Institution of Engineers India, many engineers are being awarded for their contributions to this island. So this year, this program could not be done in a large way, and we have selected Assistant Professor Dr. Engineer Muthu Kumar for his contributions and innovative research works and his achievements. So I request President IEI, Engineer V.V. Singh sir, to felicitate him with a small token of appreciation for the best engineer. First and foremost, I thank the Almighty for everything and for having this special day where our beloved President is present in this program for the first time and since the center established in this beautiful Union Territory. I request everybody to thank for that. I thank the opportunity and today's chief guest, Engineer V.V. Singh sir, who has accepted our invitation last month and agreed to be in our program despite of being invited by several other centers across the country. His presence here today is highly encouraging for IEI ANSC. Thank you, sir. It is very true that Karnataka State Center Bengaluru has invited me beforehand, and today's evening I have given to him. But my friend, Mr. Koel Raj, Emmanuel, he requested me, and he is a very close friend of mine since long.
So I could not refuse his invitation, but I requested him to kindly keep it in the morning, so that today I am flying to Bengaluru at 2:30, and in the evening I will join the other program. So thanks to Mr. Emmanuel, who has given me a chance to join here, and I wish all of you. Thank you, sir. I am thankful to Principal Debate Professor Dr. Shamokar, who is our keynote speaker also, and she has agreed to celebrate this event jointly with us and has provided all the necessary support to conduct the program smoothly in the premises. I am also thankful to the entire Debate team who have put their efforts for this event here today. Thank you, madam, and thank you to the whole team Debate. I sincerely thank all the distinguished engineers present here today from Defence, Central Government and Andaman Nicobar Administration to celebrate this special day with us, making it really vibrant. Finally, I thank all you budding engineers, students of Debate, to make this program more meaningful with your presence. Thank you all. हम बात करेंगे मैम से, हाँ, जो कि प्रिंसिपल है डिबेट की। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अपकमिंग जितने भी इंजीनियर्स हैं जो भी रेडी हो रहे हैं उनको 2 शब्द कहें। जय हिंद मैम। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं डीब्रेड के बिहाफ पे सबसे पहले सबको इंजीनियर्स डे के शुभ अवसर पे बधाई देती हूँ। और इस साल का इंजीनियर्स डे डीब्रेड और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के कंबाइंड एफर्ट से सेलिब्रेट किया गया। इसमें हमने कीनोट स्पीकर्स का टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वी हैव conducted, so that students get to know about the emerging technologies. And also I want to say that we had this time in Engineers Day, engineer VB Singh has been invited as chief guest, so we have welcomed him, and he also addressed the students as well as engineers on this occasion. So we hope that these kinds of events will be organized in future in collaboration, and these are very important for knowledge sharing and for giving the ideas to the students on newer technologies. Thank you. धन्यवाद मैम। अब बात करेंगे आज के मुख्य अतिथि इंजीनियर वीबी सिंह से। उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो हमारी जनता को वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। देखिए, आज हम लोग पूरे देश में इंजीनियर्स डे मना रहे हैं। ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, अब तक देश के जो महानतम इंजीनियर पैदा हुए हैं, भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1861 में हुआ था। और उन्होंने बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। सबसे पहले तो उन्होंने एक बार हैदराबाद में बहुत तेज़ी से बाढ़ आई थी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, उसका सोल्यूशन उन्होंने निकाला। और इसके पहले ये इन्होंने सरकारी सेवा की। उसके बाद में मैसूर के जो राजा थे उन्होंने उनको दीवान के रूप में उन्हें एक ऑफ़र भेजा। अब उनकी आप ईमानदारी की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने जितने संबंधी थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि हमको देखिए ये मैसूर के राज्य का दीवान का ये ऑफ़र आया है, मैं ये तभी स्वीकार करूंगा जब आप सभी लोग ये हमसे वादा करें कि आप हम पे कोई भी सिफारिश नहीं लाएंगे। तो उनके सभी रिश्तेदारों ने कहा कि साहब हम आप पे कोई सिफारिश नहीं लाएंगे। तब जाके उन्होंने उनका ऑफ़र स्वीकार किया और मैसूर के दीवान के रूप में बहुत उन्होंने कार्य कराए हैं। दूसरी उनकी ईमानदारी की पराकाष्ठा देखिए, वो उस समय बिजली तो थी नहीं, तो 2 मोमबत्ती वो रखा करते थे और जब कभी भी अपने सरकारी काम से जाया करते थे तो एक सरकारी मोमबत्ती होती थी, उसको जला के काम करते थे, उसके बाद वो उसको बुझा देते थे और
जो पर्सनल एक मोमबत्ती रखते थे उसको जला के कार्य करते थे। इसके अलावा जो देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कार्य वो उन्हीं के प्रयासों से शुरू हुआ था। कई स्टील फैक्ट्रीज हैं, तुंगभद्रा स्टील, आयरन स्टील है, आपका जो फिएट कंपनी है जो भारत की शायद पहली कंपनी थी, एम्बेसडर ऑफ फिएट का शुरू करवाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी इकोनॉमिक्स पे लिखी हुई किताब आज भी एक मायने रखती है, एक बहुत ही और इंजीनियरिंग पे भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। तो देश के सब महानतम इंजीनियर थे और वही एक इंजीनियर ऐसे थे जो कि उनको 1955 में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था भारत रत्न का, और उसके बाद ये भारत रत्न का सम्मान किसी भी इंजीनियर को नहीं दिया गया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो आजकल के छात्र हैं, विशेषकर जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हैं और भी जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, वो प्रयास करें अपने को अगर सर विश्वेश्वरैया तक की ऊंचाई तक नहीं पा सकते हैं तो कम से कम उसको छूने का प्रयास करें, जिससे कि एक देश में दूसरा विश्वेश्वरैया पैदा हो सके। आज तक उसके बाद कोई दूसरा सर विश्वेश्वरैया पैदा नहीं हुआ है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए और मेहनत से, ईमानदारी से हम लोगों को देश के विकास को, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक नारा दिया है कि 2047 तक विकसित भारत। तो विकसित भारत तभी पूरा होगा जब सभी इंजीनियर्स मिल के काम करेंगे, दिल से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। तो हमको आज इस अवसर पर ये शपथ लेनी चाहिए कि हम देश को 2047 तक पूर्णतया विकसित कर देंगे। धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल से हमारा ये मैसेज लोगों तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंजीनियर्स डे पे इंजीनियर की राय लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, और उनसे जानेंगे कि वो इंजीनियर्स डे पे जो हमारे जितने यूथ है स्पेशली, जिनका योगदान हमारे इकोनॉमी में, हमारे पूरे इंडिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस विषय में हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे? जय हिंद सर। Engineers build the world. That's a typical line said by the great विश्वेश्वरैया। तो आज के डेट में आप डी ब्रैड के इस कैंपस में जो इंजीनियर्स, जो न्यू जनरेशन के इंजीनियर्स को देखकर इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि कभी हम भी ऐसे चेयर पे बैठे ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते थे। आज हमें ये मौका मिला कि आज हम कुछ अंडमान के लिए कर पाए। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए अपने आप को इतना ट्रेन करें, अपने आप को इतना बिल्ड करें अपने लाइफ में विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल ऑनेस्टी, कि कुछ अपना देश के लिए भला कर सके। एंड ऑन द डे ऑफ इंजीनियर्स डे आई विश ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी इंजीनियर्स डे। थैंक यू सर। तो आज के इस खास अवसर पर इंजीनियर्स डे मनाते हुए हमने देखा कि कैसे इंजीनियर्स अपनी सोच, मेहनत और लगन से देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ टेक्निकल ज्ञान नहीं बल्कि लीडरशिप, क्रिएटिविटी और टीम वर्क का भी इम्पोर्टेंस समझा। इंजीनियर वीबी सिंह और प्रोफेसर डॉक्टर सन्मुख कौर जैसे विशेषज्ञों ने हमें बताया कि इनोवेशन और रिसर्च कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन या ब्रिज तक सीमित नहीं, ये हमारे आसपास की जगह, हम जैसे जिस सड़कों पर चलते हैं, जिस अस्पताल में जाते हैं और जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उन सब में किसी ना किसी इंजीनियर का योगदान होता है। आज के युग में दुनिया के नए चैलेंजेस के सामना कर रहा है, जैसे एनवायरनमेंट की समस्या, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। तब इंजीनियर्स का काम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो या किसी और के क्षेत्र में हो, अगर मेहनत, लगन और सही सोच के साथ काम करे तो अपने सपनों को साकार कर सकता है। आज का थीम डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, ड्राइविंग इंडियाज टेकेड, हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी स्किल्स को और मजबूत बनाएं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और देश के विकास में अपना योगदान दें।
छोटी सी सोच से बड़ा काम नहीं होता। अगर हम सपने बड़े देखेंगे, मेहनत करेंगे और सीखने का जज्बा बनाए रखेंगे तो हम अपने लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए भी एक नया रास्ता खोल सकते हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ मशीन्स और टूल्स नहीं बनाता, बल्कि नए युग के सोच, नए समाधान और नए अवसर बनाता है। आज के इस इंजीनियरिंग डे का संदेश है, सोचो, सीखो, बनाओ और बढ़ो। हर स्टूडेंट्स को प्रेरणा लेनी चाहिए, नए चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और अपनी कला को देश के हित में लगाना चाहिए। मैं आप सभी को इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर, सस्टेनेबल और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय विज्ञान, जय इंजीनियर्स। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नश्री, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।